So good morning, everyone. So already we have started properties of Laplace transformation. Okay, so रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे आज से. So already in our last class we have done our sampling procedure, sampling process definition, uh, proof of sampling theorem, and Aliasing effect. If the sampling frequency, if it is greater than twice fm, greater equal to twice fm, then what will happen? If the sampling frequency fs is equal to twice fm, then what will happen? If Laplace, if the sampling procedure is less than the Nyquist criteria, that is fs is less than twice fm, then what will happen? And now and we have seen that if it is below the Nyquist criteria, then we have seen there is a Aliasing effect. Okay, so for that you have to maintain the Nyquist criteria. Fs should be greater equal to twice fm.
So how to avoid aliasing effect? That means if you want to avoid the aliasing effect, you have to use the anti-aliasing filter. Okay, you remember all these things. If you don't allow to have aliasing effect, in that case you have to use anti-aliasing filter. What is anti-aliasing filter? It's a type of low pass filter. Okay, it is a type of low pass filter. So that's the thing. So now we'll switch to the properties of Laplace transformation. Already we have done the first property, that is your uh, linearity property, we have done in our last class. Now the second property is that it's a time shifting property. Okay, so already we know about time shifting property in our earlier cases, like your Fourier series, okay, Fourier transform. So every time we have seen that, and before that also we have seen the time shifting property. So we have idea about the time shifting, how time shifting happens. Okay, so now thing is that you are having xt as an input signal, and if you make Laplace transformation, then we symbolically represent it as x of x. Okay, we know that. While ROC is R, if ROC equal to R. Now you are giving some sort of time shifting property, x of t minus t naught. That means your xt is shifted how much amount? T naught amount. In that case, if you make Laplace transformation of this shifting signal, then it gives you e to the power minus s t naught x of s. Okay, so where containing r ROC. So e to the power minus s t naught x s. So little I have tried to make you understand the property C. Xt is equal to, if you xt have the signal, if you make Laplace transformation, that will give the x of s. And we know that e to right x of s, that is going to be written as minus infinity to plus infinity x of t e to the power minus h to dt. That is our formula. Now we have to prove it. Whether x of t minus t naught getting e to the power minus h t naught into xs. So पहले जो xs था उसके साथ एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो गया, एंड e to the power minus s into how much amount, जो वैल्यू तुम्हारा शिफ्टिंग हुआ था. सो ये x प्लस टी, x ऑफ टी प्लस टी नॉट होगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. सो माय xt e to the power minus ht dt, that is the formula. Now you want to have Laplace transformation of this signal, that is shifted time x of t minus t naught. तो xt जाएगा में क्या हो जाएगा, x of t minus t naught e to the power minus ht dt, that is your formula. Now take t minus t naught is equal to tau. So accordingly, if you make d tau, it will be d2 dt. So dt is equal to d tau. Now change the limits. Okay, if t minus infinity, that remains minus infinity. When t is plus infinity, tau also remains plus. So there is no change of limiting factors. So when we are getting Laplace transformation of this signal, so minus infinity plus infinity, it remains intact, no change at all. X of tau, x of t minus t naught is tau, x of tau हो गया, and e to the power minus s, t जाएगा में क्या हो जाएगा, t is equal to देखो tau plus t naught. Okay, so tau plus t naught, that's why I written minus s t plus tau, t naught plus tau, and d tau. Now you can separate it, x of tau e to the power minus h tau e to the power minus h t naught into d tau. Now देखो यहाँ पे h of e to the power minus h t naught ये कांस्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इंटीग्रेशन ओवर tau. तो दैट्स e to the power minus h बाहर में आ गया, अंदर में क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x of tau e to the power minus h tau d tau. तो ये हम लिखते हैं x of s लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, xt के लिए किया था x of t e to the power minus ht dt. Okay, so t now here change, so dummy variable tau is there, so that is also true for x of s. So now देखो यहाँ पे क्या हो गया, x of s हो गया, e to the power minus ht स्केलिंग फैक्टर हो गया बाहर में into x of s. So shifting means जो t नॉट प्लस माइनस हो जाएगा शिफ्टिंग सीक्वेंस में और सिग्नल में, तो पहला जो लैप्लास है उसके साथ e to the power minus h t naught मल्टीप्लाई हो जाएगा. if x of t plus t naught, तो ये e to the power h t naught हो जाएगा.
Okay, so that is the case. So similarly, if it is del of t, we know that Laplace transformation 1 होता है, t minus 1 क्या हो जाएगा, ये शिफ्टिंग है, t नॉट इज इक्वल टू -1 यहाँ पे, तो e टू द माइनस s हो गया। एंड पहले क्या होता है, x ऑफ s यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 हो गया, प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, इसलिए मैंने बोला इस x ऑफ t प्लस t नॉट होगा तो e टू द पावर s t नॉट होगा, और x ऑफ t माइनस t नॉट होगा तो वो x e टू द पावर माइनस s t नॉट हो जाएगा। Now the time reversal property, every property is already we have studied, so we will not take any much time here. So x of t के लिए x of s है, we know that xt तुम्हारे पास सिग्नल है, if you make Laplace transformation it will give you x of s. Now consider region of convergence is R. Now time reversal means you people know that this is a image, mirror image, okay, तो x of minus t फोल्डिंग इफेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे 100 माइनस टी हो जाएगा, इसके लिए तुम्हारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज किया होगा। तो वहाँ पे भी हम लोग देखे थे फूरियर में भी, वहाँ पे माइनस जे ओमेगा हो जाते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस एस हो जाएगा, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या होगा, 1/r। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/r हियर, सिंबॉलिकली वी आर राइटिंग 1/r, पहले r था, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नाउ 1/r हो गया, कब हो गया, जब ये टाइम रिवर्सल हो गया सिग्नल का। देखो मान लो पहले जो तुम्हारा एक्सेस है उसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है सिग्मा ग्रेटर देन -4, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -4, तो 1/r के लिए हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ये सिग्मा सिग्मा लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r का मतलब ये है। मैंने और एक एग्जांपल लिए है यहाँ पे सपोज r इस तरह है, इस सिग्मा लेस देन 4 मींस रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन 4, 1/r क्या हो जाएगा, सिग्मा ये लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन r एंड 1/r रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी that is your time scaling property. So this is also not new here. In the case of Fourier we had a discussion. So x of t के लिए क्या हो गया, x of s रीजन ऑफ कन्वर्जेंस r। नाउ यू आर scaling, you have a scalar factor x, constant factor alpha, you are multiplying that factor with time, so now the new signal is x of alpha. Now this new signal gets transformed in Laplace domain, okay, s domain, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, 1/mod s, okay, it always magnitude always plus positive x of s by alpha, s by alpha, अल्फा फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे x by s अल्फा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी अल्फा टाइम्स r हो जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी अल्फा टाइम्स हो जाएगा। तो लेट अस सी, let us see what happens now। xt के लिए x of s है, ओके, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये हर टाइम हम लोग लिखते हैं, वेल नोन फॉर्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, we had also class for proving it। तो नाउ क्या सिग्नल है, अल्फा टी, न्यू सिग्नल है अल्फा टी, एक्स ऑफ अल्फा टी, तो इसके लिए जो फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा वो होगा x1s। So for Laplace transformation of x of alpha t, that is recognized here as x1s, and that can be written as minus infinity to plus infinity, xt की जगह में क्या हो जाएगा, x of alpha t into e to the power minus s to dt। Now consider alpha t is equal to tau here, okay, alpha t is equal to tau, so t is equal to क्या हो जाएगा, tau by alpha, tau by alpha। now if derivative, make the derivation here, so डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, dt is equal to d tau by alpha, d tau by alpha, that is, now you can write alpha is equal to d tau by dt, you can write। now what about the limit factor, लिमिट ये t का वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे क्या है, t का वैल्यू प्लस इंफिनिटी। now देखो t के साथ टाउ का क्या चेंज होता है, t जब माइनस इंफिनिटी, देखो t जब माइनस इंफिनिटी, टाउ भी माइनस इंफिनिटी,
टी जब प्लस इन्फिनिटी, टाउ भी प्लस इन्फिनिटी, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसलिए x1s, नाउ देखो ये x1s हम क्या कैसे लिखते हैं, x1s इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लिमिट में कोई चेंज नहीं है। एक्स ऑफ अल्फा टी था, अल्फा टी को मैंने टाउ पकड़ लिया तो एक्स ऑफ टाउ हो गया। नाउ e टू द पावर माइनस एस टी था, e टू द पावर माइनस एस इंटू टी था, तो टी इज इक्वल टू क्या है, टाउ बाय लैम्डा, ए टाउ बाय अल्फा, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस एस टाउ बाय अल्फा, ओके। एंड dt, dt के बदले में हम क्या लिखेंगे, dt इज इक्वल टू डी टाउ बाय अल्फा, सो डी टाउ बाय अल्फा। तो जो जो वैल्यू था हमने पुट कर दिया। नाउ वी मेक सम सिंप्लिफिकेशन हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वी आर रीअरेंजिंग द फॉर्मूला। तो देखो ये जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 बाय अल्फा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ, ये थोड़ा रीअरेंज कर दिया e टू द पावर माइनस एस बाय अल्फा इनटू टाउ, ओके, रीअरेंज कर दिया इनटू डी टाउ। सो टाउ रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, पहले टी के रेस्पेक्ट में था, तो ना देखो 1 बाय अल्फा एज इट इज, तो ये जो है एक्स ऑफ टाउ e टू द पावर माइनस एस बाय अल्फा टाउ डी टाउ, ये जब एक्स ऑफ टी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी होता है वो एक्स ऑफ एस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एस का बदले में क्या हो जाएगा, एस बाय अल्फा हो जाएगा, इसलिए देखो एक्स ऑफ एस बाय अल्फा हो गया। बाहर में क्या है, ये तो कांस्टेंट है 1 बाय अल्फा, इसलिए 1 बाय अल्फा इंटू एक्स ओ एस बाय अल्फा, तो फॉर्मूला देखो क्या है, 1 बाय अल्फा एक्स एस बाय अल्फा और उससे अल्फा, तो ये तुम्हारा 1 बाय अल्फा एक्स ऑफ एस बाय अल्फा ये आ गया, लेकिन ये मॉड है तो तुम ये माइनस फैक्टर भी कर सकते हो, एक्स ऑफ माइनस अल्फा टी वो भी सेम ही होगा, अल्फा का वैल्यू ऑलवेज ये पॉजिटिव ही आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसलिए अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस जो भी है ये ऑलवेज 1 बाय मॉड अल्फा एक्स ऑफ एस बाय अल्फा होगा। Now you have to think about the region of convergence. For that, let us take one example here. We are taking one numerical example. समझ लो यहाँ पे मान लो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू e पर माइनस 2t ut, तो ऑलरेडी दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म e टू द पावर माइनस 80 ut, we have done Laplace transformation of that sort of expressions already we have done in your 2-3 class earlier। तो एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ एस, तो एक्स ऑफ एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 80 ut होता तो क्या होता 1 बाई एस प्लस ए, दिमाग में है ना, और में ये है ना e टू द पावर माइनस 80 ut, तो क्या होता है 1 बाई एस प्लस ए होता है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये 1 बाई एस प्लस 2, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, रियल पार्ट ऑफ एस था ग्रेटर देन माइनस ए, ग्रेटर देन माइनस ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो दैट्स व्हाई सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2। तो ये था तुम्हारा एक्स टी के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। नाउ ये तुम्हारा xt, नाउ वी आर स्केल द टाइम फैक्टर बाय हाउ मच 3 टाइम्स, अल्फा इज इक्वल टू 3 दिया, देखो तो x1t इज इक्वल टू x ऑफ 3t कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3t, तो ये t की जगह में 3 हो जाएगा, 3t हो जाएगा, तो ये माइनस 6t हो जाएगा, xt ये क्या हो गया चेंज हो गया e टू द पावर माइनस 6t ut। तो इसको भी पता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर माइनस 80 ut के लिए क्या होता है 1 बाई s प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई s प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लेप्लास में क्या फॉर्मूला है 1 बाई अल्फा, ठीक है, तो 1 बाई अल्फा, अल्फा ये कहाँ कितना है 3 है, तो 1 बाई 3 होता एक्स ऑफ एस बाय अल्फा, सो एक्स बाय एस बाय अल्फा, तो ये जो एस है एस इज रिप्लेस्ड बाय एस बाय 3, इजंट एस इज रिप्लेस्ड बाय एस बाय 3, तो ये क्या होगा 1 बाय एस बाय 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा एलसीएम करोगे तो एस प्लस 6 ऊपर में 3 हो जाएगा, तो 3 बाय एस प्लस 6, 3 बाय एस प्लस 6, और बाहर में क्या होगा 1 बाय अल्फा दैट इज 1 बाय 3, सो 1 बाय 3 इंटू 3 बाय एस प्लस 6, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बाय एस प्लस 6 हो गया। तो ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो भी ये 1 बाई एस प्लस 6 होगा, और ये डायरेक्टली जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस 6 ut के लिए वो भी मैंने कर दिया, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये एस प्लस 6 होगा तो क्या होगा ये
तुम्हारा पता है ये सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 है, तो इसलिए रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन -6। ना देखो मैंने क्या बोला, आरओसी क्या होगा, आरओसी होगा तुम्हारा अल्फा इंटू आर, अल्फा टाइम्स आर। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा का वैल्यू 3 है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 3 है, और पहले क्या था 2 था, तो 2 इंटू 3 6, तो इसलिए -6 हो गया। अल्फा इंटू आर, आर पहले क्या था -2 था, नाउ अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, 3 इंटू -2 दैट इज -6। So using property also you can find out the Laplace transformation here. Now that was your time scaling property. Now the fifth property. Now बोलो जो कुछ डाउट है, up to 4 property. If you have any doubt, you can tell me. Now otherwise we will move to property number 5. तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? तुम्हारा मिड सेम 2 का नोटिस तो मिल गया ना, वो शायद 5, 6, 7 है अगस्त में, तो 5 तारीख सर को सिलेबस क्या रहेगा सर मिड सेम का? बोल देंगे आज। और सिलेबस होगा बाबू तुम्हारा ये सैटरडे तक, मतलब फ्राइडे तक जो क्लास होगा, ठीक है, मीन्स कल तक जो होगा, ठीक है, कल जब होगा तो तुम अप टू लैप्लास तक तुम ध्यान से पढ़ो, कुछ डाउट है ना नोट्स ठीक से पढ़ो, और रेफरेंस बुक है तो पढ़ो, सिलेबस देखते देखते। ओके, तो जैसे मैंने बनाया था क्वेश्चन पहला मिड सेम में, सर तो स्टैंडर्ड वही होगा। बोलो। सर मैं बोल रहा था ना सर, जो पिछले बार भी जो मॉड्यूल्स जो आए थे सर, इस बार भी वही मॉड्यूल्स को कंसिडर भी करेंगे कि सर जो अभी जो सेकंड मिड सेम के लिए जो जितना सिलेबस आप पढ़ाए हैं सर उतना ही तक देंगे सर? दोनों देंगे सर कि एक ही देंगे? देखो दो दो होगा तो तुम पढ़ाई करोगे पूरा का पूरा, ठीक है, ये सर। और हम बाद में वो छोटा वाला दे देंगे तो ये तुम पढ़ेगे वो नहीं तुम पढ़ेगे, इसलिए मैं मेरा जो सोच है ये हम पूरा का पूरा ही देंगे। तुम लोग क्या चाहते हैं, तुम लोग तो चाहते हो सर बाद में जो है मेडिसिन का वो आप दे, ये तुम बोलोगे। तो क्वेश्चन कैसा था पहला वाला जो मिड सेम था, आई थिंक आप तो देख चुके हैं एमसीक्यू। तो लगभग अच्छा ही हुआ था। हाँ अच्छा ही हुआ था, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड में वही रखूंगा, इतना नहीं है जो खूब टफ होगा, मिड सेम है इसलिए थोड़ा इजी होगा, लेकिन जो तुम पढ़ चुके हैं वो ध्यान से और दिमाग में रखना पड़ेगा, तो तुम्हारा एग्जाम आसानी हो जाएगा, आसानी से वो तुम ज्यादा मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो इस दैट मीन्स फूरियर से फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर मेनली फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और तुम्हारे जो लास्ट क्लास में जो मैंने किए थे क्या बोला मैंने, सैम्पलिंग को, तो ये भी होगा, और उधर से जो था हाँ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, हाँ प्रॉपर्टीज उसका, ठीक है, सिग्नल सिस्टम का, इतने सारे थे, तो ये हम बताएंगे। और सिलेबस शेष होने के बाद हम एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है, वो तुमको अच्छे से करना। तो वो आई थिंक हम लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, वो ये जेड जेड बाकी वाला है, तो आई थिंक विद इन अगस्त 15 तक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैप्टर वाइज हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बात यही है, तो घर में तुम पढ़ाई करो ठीक से, और हम एक काम करेंगे, मिड सेम कंप्लीट होने के बाद असाइनमेंट हम दे देंगे, असाइनमेंट तुम प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट के बाद वो हम एक बड़ा वाला एग्जाम जैसे तुम ऑफलाइन में देते थे ना, तो इस तरह एक एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे, अगस्त में ही करेंगे इनका। और देखो एग्जाम कब हो रहा है कैसे हो रहा है ये तो मालूम भी नहीं है अब तक, ऑनलाइन होगा नहीं तो ऑफलाइन होगा क्या होगा,
तो बोला नहीं ना यूनिवर्सिटी में, तुम लोग सुने थे क्या? ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक आया नहीं, तो वो जब आ जाएगा हम बता देंगे, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। और तुम सुना ना, मैं तो मेरा को तो वन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, ठीक है, वो डीन का एकेडमिक्स का, हाँ, एकेडमिक इंचार्ज तो बना दिया मुझको, तो वो भी एक मेरा काम है। तो देखो जैसे जैसे तुम्हारा, हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ, हाँ, एकेडमिक के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा, तो तुम बोल भी सकते हो, आई विल जॉइन लेवल बेस्ड टू मेक यू बेटर, बेटर क्लासेस और वर्कशॉप सेमिनार वगैरह वगैरह, और जो है हम कोशिश करेंगे सिलेबस से समय के बाद फिर भी ट्राई करेंगे, लेकिन कांस्टेंट है, हाँ, कोरोना की वजह से बहुत कांस्टेंट आ गया, लेकिन ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे। तो पहले तुम्हारा जो सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ना है, पहले तो ये बात है, उसके साथ वो तो हम तुम्हारा तो हो रहा है, वो मैंने मिनी प्रोजेक्ट का क्लास ले रहा हूँ, वो भी चलता रहेगा, तो तुम्हारे लिए। तो ये है तुम्हारा सिलेबस पूरा का पूरा लैपलास, किसको कुछ कोई डाउट है तुम्हारा इस बारे में कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ठीक है। तो कल तक फ्राइडे तक जो क्लास होगा वही तुम्हारा सिलेबस में रहेगा मिक्सर, उसके बाद जो क्लास होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रोवाइडेड, दिस इज ऑल्सो नॉट न्यू हियर, क्योंकि हम लोग आ, पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है कि नहीं, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है एक्सटी एक्सेस होता है लैप्लास के लिए, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आर है। नाउ देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो गया, e टू द पावर एस नॉट टी, ये भी माइनस भी हो सकता है लेकिन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, e टू द पावर एस नॉट टी एक्स टी। तो जब एक्स टी के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, एक्स ऑफ एस माइनस एस नॉट हो जाएगा। जैसे वहां पे क्या था, ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट था ना, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्या, एक्स ऑफ एस माइनस एस नॉट, और उसी क्या हो जाएगा, पहले प्रीवियसली जो आर था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एस नॉट। ये जो देखो एस नॉट, ये इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, कोई पार्ट, ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम एस नॉट रियली होगा, ठीक है, ये नहीं है जो हर टाइम ये रियली होगा, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो जब एस नॉट कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके टाइम आर प्लस रियल पार्ट ऑफ एस नॉट होगा, नहीं तो आर प्लस सिग्मा हो जाएगा। रियल पार्ट तो एस नॉट ही होता है, क्योंकि तुम जानते हो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में सिग्मा वैल्यू ही रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जी ओमेगा पार्ट कोई नहीं चेंज करता है। तो देखो एक्सटी के लिए फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हर टाइम फूरियर आ जाता है बीच में। एक्सटी के लिए 120 होता है, फॉर्मूला क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी पर माइनस एस टी डी टी, ये था तुम्हारा फॉर्मूला। नाउ देखो नाउ नया जो सिग्नल है क्या हो गया, x1 टी e टू द पावर s नॉट टी एक्स टी मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके जो सारे फैक्टर है पूरा का पूरा हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। तो x1 टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन x1 s है, फॉर्मूला क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये पूरा सिग्नल हो जाएगा, पूरा सिग्नल का तुम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। सिग्नल क्या है, एक्स टी, उसके साथ e टू द पावर एस नॉट टी, e टू द पावर एस नॉट टी एक्स टी, e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये फॉर्मूला का पार्ट है, पुट कर दिया। तो थोड़ी सी रीअरेंज कर दिया यहाँ पे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, देखो एक्स टी जो है वही है। हम्म तो देखो एक्स टी, और यहाँ पे देखो एस नॉट टी और माइनस एस टी है, तो बिल्कुल माइनस टी तुम कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो माइनस टी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो माइनस टी कॉमन लेने के लिए क्या हो गया वो देखो, e टू द पावर माइनस एस नॉट टी डी टी,
तो ये देखो फॉर्मूला तो क्या होगा, e टू दी पावर एस टी होता है एक्स टी, तो एक सब एस होता है, तो एक्स टी टू दी पावर माइनस एस नॉट टी हो गया, तो इसलिए एक सब एस माइनस एस नॉट हो गया, एस का बदला एस जाएगा में एस माइनस एस नॉट हो गया, इसलिए x1 एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एक सब एस माइनस एस नॉट। तो कंक्लूजन क्या है, xt के साथ जब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है, वो जो फैक्टर एस नॉट होता है वो शिफ्ट हो जाता है सीधे एक सब एस माइनस एस नॉट। if it is x1 t is equal to e to the power minus s naught t xt होता, तो ये हो जाता है क्या होता, x of s plus s naught, तो x of s plus s naught, तो दोनों तरफ भी शिफ्ट होता है प्लस s naught माइनस s naught डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर। नाउ we'll take, तो प्रूव हो गया, नाउ टेक वन एग्जांपल हियर, x of t is equal to e to the power minus 3t ut, तो इसके लिए क्या होता है, x of s 1 by s plus 3 बिकॉज e to the power minus 8 ut हम जानते हैं ये, और ROC क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एस दैट इज सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 3, मतलब इस तरह ये जे ओमेगा एक्सिस, ये सिग्मा एक्सिस, माइनस 3 इधर है, तो राइट साइड ऑफ द सिग्मा इक्वल टू 3, ये राइट साइड हो जाएगा क्योंकि ये सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 3, तो ये होगा ना। देखो क्या लिया, सेकंड जो सिग्नल है क्या है, x1t e to the power minus 2t into xt, तो xt है, तो उसका सर हम लोग e to the power minus 2t माने s नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2, ठीक है। तो देखो e to the power minus 2t e to the power minus 3t ut हो गया, xt का वैल्यू क्या है बाबू, e to the power minus 3t ut पुट कर दिया, तो e to the power minus 2t e to the power minus 3t, तो ये क्या हो जाएगा, e to the power minus 5t ut हो गया, तो e to the power minus 8t ut, तो इसका फॉर्मूला तो हमको पता है 1 by s plus 5 हो गया, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, सिग्मा ग्रेटर देन -5, है कि नहीं। तो ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो मैंने क्या बोला जी, ये e टू दी पर माइनस, ये तो फॉर्मूला लेके कर दिया, प्रॉपर्टी लेके भी वो हो जाएगा। देखो ये एस नॉट है तो एक्स ऑफ एस प्लस एस नॉट, ये माइनस एस नॉट होगा तो एक्स ऑफ एस प्लस एस नॉट होगा, तो देखो एक्स एस क्या है 1 बाई एस प्लस 3, ठीक है। तो नाउ तुम क्या लिया, e टू दी पर माइनस 2t, तो यहाँ पे एस नॉट का वैल्यू क्या है, 2 है, -2 है, तो ये क्या होगा, एक्स ऑफ एस प्लस एस नॉट, दैट मींस एक्स ऑफ एस प्लस 2 हो जाएगा, एक्स ऑफ एस प्लस 2, तो एक्स ऑफ एस प्लस 2, तो एक्स एस पहले क्या था 1 बाई एस प्लस 3, तो एस इज रिप्लेस्ड बाय एस प्लस 2, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, तो एस इज रिप्लेस्ड बाय एस प्लस 2, तो यहाँ पे एस प्लस 2 लिख दोगे तो क्या होगा, एस प्लस 2 प्लस 3, तो एस प्लस 5 हो जाएगा। So using this property also we are getting the same result 1 by s plus 5, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या कहती है, आर, आर पहले क्या था, आर पहले क्या था -3, तो -3, और नाउ देखो क्या है, ये -3 है, नाउ रियल पार्ट ऑफ एस नॉट क्या है, ये है -2 है, तो पहले -3 है और यहाँ पे -2 है, तो -3 प्लस माइनस प्लस और -2, सो -5, तो इसलिए देखो -5 हो गया। तो using property we can easily find out Laplace transformation for time frequency shifting theory, okay, क्योंकि frequency shifting s minus s naught, that is s naught amount of frequency shifting हो रहा है। तो फूरियर में जैसा हुआ था 100 ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसके साथ रियल पार्ट भी है, इसलिए 100 s minus s naught और 100 s plus s naught depending upon the complex exponential factor, okay, so that was your frequency shifting property. Now convolution in time, देखो frequency shifting में किसी को भी दिक्कत है, कोई क्वेरीज है तो तुम बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now we come to convolution in time, okay, तो convolution तो हमको पता है, हम लोगों के पास कन्वोल्यूशन पता है ना, x1 x2 जब सिग्नल कन्वोल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, -∞ to +∞ x of tau
एक्स टू टी माइनस टाउ डी टाउ, और एक्स ऑफ एच में जब कन्वोल्यूशन होता है एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी में, तो क्या था माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ये था तुम्हारा फॉर्मूला। तो तुम ये जानते हो, हम लोग कर चुके। तो x1 t के लिए मान लो x1 s है, x2 t के लिए लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन x2 s है, और r1 r2 दे आर द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो थिंग इज दैट इफ यू मेक कन्वोल्यूशन बिटवीन दीज टू सिग्नल्स x1 एंड x2, उसका जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो तुमको पता है, जब फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी ये था, जब टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है तो इस डोमेन में दे आर सिंपल मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, x1 s into x2 s। और ROC क्या होगा, एज दे आर मल्टीप्लाइड फॉर्म, सो इंटरसेक्शन कॉमन एरिया ROC होगा, सो R1 इंटरसेक्शन R2। नाउ लेट अस फॉर प्रूफिंग इट। सो x1 s के लिए क्या है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x1 t टू द पावर माइनस st dt, x2 s के लिए क्या होगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x2 t e to the power minus st dt। These are the formulas, nothing new to us. Now the new signal xt, what is that? Convolution of this previous individual signal x1 t x2 t। ये यहाँ पे जो xt है इसके लिए तुमको लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो x ऑफ s xt के लिए लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन x ऑफ s है, फॉर्मूला क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस st, सिंपल सा फॉर्मूला है। xt का वैल्यू क्या है x1 t स्टार x2 t e टू द पावर माइनस st dt। नाउ x ऑफ s इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये था तुम्हारा लैप्लास के लिए इंटीग्रेशन। नाउ कन्वोल्यूशन मैंने जो तुमको बोला है xt स्टार ht, फॉर्मूला क्या था x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है x1 है तो x के बदले में x1 और h के बदले में x2, तो फॉर्मूला तो सेम है x1 टाउ इंटू x2 t माइनस टाउ डी टाउ, ये बाहर में क्या है e टू द पावर माइनस st e टू द पावर माइनस st dt। तो ये हम लोग कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दिया है यहाँ पे। नाउ वी हैव टू टेक सम assumptions here to simplify the expressions। ओके, तो क्या कंक्लूजन है, क्या कंसीडरेशन है यहाँ पे, t माइनस टाउ जो है वो हम लैम्बडा पकड़ लेंगे। सो लेट अस कंसीडर t माइनस टाउ इज इक्वल टू लैम्बडा, सो dt इज इक्वल टू d लैम्बडा हो जाएगा। और लिमिट देखो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी t का था, लैम्बडा के लिए वो भी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सेम टू सेम। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t की जगह में हम लिखेंगे लैम्बडा प्लस टाउ, t माइनस टाउ इज लैम्बडा, सो t इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस टाउ। सो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू मैंने मिला है हमको मिला है हम पुट कर देंगे। तो चलते हैं, देखो x ऑफ s इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लिमिट में कोई चेंज नहीं है, x1 टाउ एज इट इज, x2 t माइनस टाउ मीन लैम्बडा, सो x2 लैम्बडा d टाउ, ओके d टाउ एज इट इज e टू द पावर माइनस st t की जगह में हम पुट करेंगे लैम्बडा प्लस टाउ, e टू द पावर माइनस t की बदले में लैम्बडा प्लस टाउ पुट कर दिया, dt इज इक्वल टू d लैम्बडा, देखो dt इज इक्वल टू d लैम्बडा पुट कर दिया। तो ये है तुम्हारा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। नाउ वी आर रीअरेंजिंग द होल, दो इंटीग्रेशन है तो दो इंटीग्रेशन के हम लोग दो भाग कर देंगे। अच्छा लेस देन 1 मिनट हो गया, हम लोग क्विक ज्वाइन करेंगे एंड ये प्रॉपर्टी हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम आज कंक्लूड कर देंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन दो है इधर वो हम सेपरेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सेपरेट कर दिया, दो इंटीग्रेशन है और दो वेरिएबल भी है, टाउ है लैम्डा है, देखो ना डी टाउ डी लैम्डा। तो दो वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर देंगे, दो इंटीग्रेशन भी है दो वेरिएबल भी है, क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर टाउ इंटीग्रेशन ओवर लैम्डा हो रहा है, इसलिए दो एक्सप्रेशन को हम सेपरेट कर दूंगा यहाँ पे। So after separating this, we are getting this sort of expressions. Okay, क्या है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पहला वाला क्या है x1 टाउ e टू द पावर माइनस, देखो ये ब्रेक कर दो यार इसको, e टू द पावर माइनस s लैम्डा